Hello, students. A very good morning to all of you. Today, I'm going to start the poetry. I'm going to start the very first poetry of our syllabus. Okay. So, students, as I have completed, uh, accomplished one chapter in main course book, and another is uh, one in the moments the supplementary book. So I thought just to finish one poetry also in the syllabus. Then we shall move further toward the other chapters of the books of the main reader book. So therefore, today I am presenting you the poetry which named The Road Not Taken, okay, by Robert Frost. Robert Frost is a very renowned poet of his time. He had been, and he wrote several poetries regarding nature and the masses behind. Okay, he was one of the realistic poets who wrote so many inspiring poetries. So this is one of them. This poetry is his self uh, you know self a kind of experience, self experience, which he undermines. Now he is sharing here in the form of poetry. Okay, this poetry uh, deals with the time of everyone's life. Okay, time in everyone's life, where we come to a point where we come to a point, we get two paths. Okay, from where we get two paths means, okay, it means that simply I just want to tell you today. Okay, as I have seen the interest of yours in poetry and prose, therefore students, I decided to give you the lectures of English bilingually, both in Hindi and in English. Okay, so this is a new change I decided to represent in front of you. Therefore, I'm just going to start it from this poetry onward. So let us start this now. Students, हम सब जानते हैं यहाँ जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो एक ऐसी पोइट्री को डील कर रहे हैं, एक ऐसी पोइट्री के रूप में अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं. वो बताते हैं कि हर इंसान की लाइफ में, इन एवरी वंस लाइफ, there might be a stand, or there might be a situation where we have to come across two you know uh, two paths. Okay, जहाँ हमें दो रास्तों दो राहे पे खड़ा होना पड़ता है. ठीक है, ये सिचुएशन सबके साथ आती है. आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई के दौर में हैं, 10th पास आउट करने के बाद बहुत से स्टूडेंट के सामने ये दो राह आ जाता है. वो सोचते हैं कि वो 10th के बाद बायोलॉजी से पढ़ें या मैथमेटिक्स से पढ़ें, तो दो राह खड़ा हो गया. तो हर जगह हम ऐसे दो राहे पे खड़े हो जाते हैं. मीन्स वी ऑफन कंफ्यूज्ड, ओके, वेदर टू चूज वन or to another. Okay, so this was also same with Robert Frost. Okay, he felt the same situation, and he tried to reveal it in the form of his poetry. Okay, students, let us talk about it in detail. So this is not a very long poetry. It's a short poetry of 4 stanzas. Okay, so this poetry deals, as I told you, what it deals with.
So let me now come on to the lines. Okay, two roads diverge in a yellow wood. Okay, when he was moving, two roads, he says, two roads diverge in a yellow wood. Okay, Robert Frost says two roads diverged in a yellow wood. Here wood means forest. Okay, wood means forest. Okay, so two roads diverge in a yellow wood means a yellow forest. If he was going somewhere. Okay, one more thing student, अक्सर जब आप पोएट्रीज पढ़ते हैं, ठीक है, पोएट्री हमेशा क्या होती है, उसमें एक पन होता है. पन का मतलब होता है ड्यूअल सेंस. ओके, ड्यूअल सेंस, आपने ड्यूअल कैमरास बहुत यूज़ किए होंगे, ये ड्यूअल सेंस की बात हो रही है. ड्यूअल सेंस मीन्स बातें कहीं कुछ और जाए और मतलब उसका कुछ और हो. ठीक है, समझ गए. तो विच इज़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं कहीं पे नज़रे कहीं पे निशाना, जैसे कहा जाता है. ठीक है, तो इस तरह से ये पोइट्री जो है वो बताती है कि कैसे मीन्स पोइट्रीज जो होती हैं वो अक्सर ऐसे ड्यूअल सेंस लिए होते हैं. एंड पोइट्रीज आर नॉट नैरेटिव कॉन्सेप्ट. पोइट्री कभी भी नैरेटिव नहीं होती है, वो एक्सप्लेन नहीं करती पूरी चीज़ें ना. सम थिंग्स टू बी कंसीडर्ड, कुछ चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है, माननी पड़ती है, अपने से परस्यू करनी पड़ती है. ठीक है, हर चीज़ पोइट्री रिवील नहीं करती है. पोइट्रीज हैव ऑलवेज अ हाफ सेंस, द हाफ वी हैव ourselves to manifest. Okay, लीड फर्दर. सो वो जंगल के रास्ते जा रहा था, तो उसे येलो फॉरेस्ट, एक येलो जंगल में उसे एक जगह पे दो रास्ते मिलते हैं, दो रास्ते डाइवर्ट हो रहे होते हैं. वो वहाँ पहुँच जाता है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. ही फेल्ट रिग्रेटेड नॉट टू ट्रेवल ऑन बोथ, मीन्स ही वॉज फोर्सफुल टू चूज़ वन ऑफ देम. उसे बहुत पछतावा होता है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था एक साथ. ठीक है, इसका मतलब कि वो एक ही रास्ते को चुन सकता था और दूसरे के लिए उसे पछतावा करना था. ठीक है, so therefore and sorry I could not travel both. He regretted that he could not travel both. And be one traveler long I stood. And be one traveler, it means being a single traveler. और एक यात्री होने के नाते, एक यात्री दो रास्ते. ठीक है, तो एक यात्री होने के नाते अब कहीं पे भी अगर ऐसे दो राहें आते हैं तो हम कभी भी ऐसे ही आंखें बंद करके तो निकल नहीं जाते हैं. हम ऐसे दो राहों पर क्या करते हैं, हम खड़े होकर के किसी न किसी से पूछ लेते हैं कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है. या कहीं न कहीं हम अपने आप से एक सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि कौन सा रास्ता, विच वन वुड बी बेटर. ओके, सो दिस वे he also stood there, he also lingered there to think whether to choose the first one or to the second one. Okay, उसने सोचा कि पहला रास्ता चुनूं कि दूसरा रास्ता, इसलिए वो सोचने के लिए वहाँ पे खड़ा हो गया. लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक खड़ा रहा, सोचता रहा. एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड. एंड ही फर्दर लुक्ड डाउन द स्ट्रीट as far as he could see. Okay, means वो दूर तक देखता रहा, एक एक सड़क को बारी बारी से, जहाँ जहाँ तक दूर तक देख सकता था उसने दोनों सड़कों का इंस्पेक्शन किया, उसकी जांच की और उसके बारे में सोचता रहा. टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, मीन्स वेयर ऑन विच प्लेस. वो ये देखता रहा कि कहाँ पर जो है ये दोनों रास्ते जंगल में समाप्त होते हैं, मुड़ते हैं, ख़त्म होते हैं. ठीक है, इस चीज़ को वही खड़े खड़े वो देखता रहा. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा. नाउ द सेकेंड इज़
then took the other as just as fair and having perhaps the better claim. Okay, listen this paragraph. This is really very really very important poetry part of this poetry. Then took the other, उसने क्या किया, फिर उसने दूसरे रास्ते को चुन लिया, पहले को चुनने, rather than choosing the first one he chose the second as just as fair, means thinking that this would be fair for him, he chose second rather than the first. Okay, and having perhaps the better claim, and it had, after assessing both the way, he had better claim in his mind to choose the second way rather than the first way. Okay, तो उसके दिमाग में ये सेकंड रास्ते को लेकर के ज़्यादा ही एडवोकेसी हो रही थी, क्लेम हो रहा था कि नहीं ये रास्ते पे जाने लायक है। रीज़न क्या था उसके दिमाग में, उसने कैसे इंस्पेक्शन किया था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ओके, उसने क्या सोचा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ओके, एंड वॉन्टेड वियर। वेन ही लुक्ड बोथ द वे ही फाउंड दैट द फर्स्ट वे was walked a bit more, okay, means the leaves and grass were trodden by the under the feet of the people, okay, while the second one was grassy, means दूसरी सड़क पर क्या था, उस पर घासें उगी हुई थी और वो कहीं ना कहीं इट वाज जस्ट इनवाइटिंग टू ओवरकम ना, वो सड़क इनवाइट कर रही थी कि नहीं हमारे रास्ते पे चलो। ठीक, तो यहाँ पे पोएट एक मैसेज देने का प्रयास कर रहा है। द पोएट इज ट्राइंग टू गिव अस टू डिलीवर अस अ मैसेज दैट ही नेवर एवर ट्राइड टू गो द वे मास गो। ओके, जिस रास्ते से भीड़ निकलती है, जिस रास्ते से सब जाते हैं, पोएट ने उस रास्ते को नहीं चुना। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जीवन में ऐसे बहुत सी जगह मिलती है जहाँ पे हम एक को देख करके दूसरा भी निकल लेता है ना, मीन्स कि एक जा रहा होता है तो दूसरा उसको फॉलो करने लगता है, कहता है कि नहीं ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा यही चीज़। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट थिंग। ओके, सो इसीलिए पोएट ने कहा कि हम दूसरा रास्ता चुनेंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ठीक है बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता, जब आप भीड़ में चलते हैं ना, बहुत ध्यान से याद रखना, भीड़ इंसान को शक्ति देती है। क्राउड गिव्स पावर टू पीपल। ओके, क्राउड गिव्स पावर टू पीपल बट द रिकग्निशन इज ब्रॉट टू यू बाय मूविंग अलोन। ओके, इसका मतलब भीड़ से हमें शक्ति मिलती है पर पहचान अकेले चलने से बनती है। ओके, पर पहचान अकेले चलने से बनती है। सो देयरफॉर मिस्टर फ्रॉस्ट ऑल्सो choosed the second way, which was grassy. It seems like that very few people walked through that way, therefore he chose the second path, the grassy one, and which also needed which also wanted wear, means someone walk on them on it. So though as for that the passing there had warned them really about the same. Okay, though as for the passing there, उसने महसूस किया कि उन सड़कों पर जाने के दौरान, as though the passing there मतलब उस पर हालांकि चलने के दौरान, had warned them really about the same, वो पूरी तरीके से वॉर्न आउट हुआ, थक सा गया या वो बोर हो गया कि ये दोनों रास्ते तो एक जैसे ही थे। ठीक है ना, या एक जैसे ही रास्ते तो एक जैसे ही होते हैं, उसको इस बात को लेकर के एक कहीं ना कहीं उस पर जाने के दौरान उसको ऐसा एहसास हुआ। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ स्टैंजा। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंजा एंड पैराग्राफ, ये भी आप जानते रहिए कि पोएट्रीज़ में हम पैराग्राफ को स्टैंजा कहते हैं और फिक्शंस में, फिक्शंस मतलब स्टोरी जिसको हम गद्य कहते हैं, तो उसमें क्या होता है,
तो उसमें उसमें हम उस स्टैंजा को पैराग्राफ कहते हैं। तो यहाँ हम इसको स्टैंजा बोलेंगे, ये पद्य है ना, पोइट्री है। सो एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और दोनों ही रास्तों पे उसने कहा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों ही रास्तों पे ना सुबह सुबह एक बराबर पड़ी हुई होती हैं। इन द लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, जो पत्तियाँ होती हैं वह दोनों रास्तों पर बिखरी हुई होती हैं एक बराबर सुबह ना, और कोई भी स्टेप, कोई किसी के भी कदम उसके ऊपर चले हुए से दिखाई नहीं दिए। मीन्स नो वन हैड ट्रॉडन ब्लैक द लीव्स वॉकिंग ऑन टू इट ना, पत्तियों के ऊपर चलकर किसी ने उसको ना कुचल के ब्लैक नहीं किया था। दोनों पे एक बराबर जो है मॉर्निंग में पत्तियाँ पड़ी हुई थी फ्रेश। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और उसने क्या किया, ही डिसाइडेड दैट द फर्स्ट पाथ ही वुड वॉक ऑन अनदर डे ना, उसने किसी और दिन के लिए उस रास्ते पे चलना स्वीकार किया और दूसरे रास्तों को उसने चलने के लिए पकड़ लिया। उसने सेकंड वे को जो है अडॉप्ट कर लिया। येट knowing how way leads to onto way, I doubted if I should ever come back. Yet knowing, okay, however knowing how way leads onto way, कैसे एक रास्ता जो है अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, इसको जाते हुए भी I doubted, मुझे संदेह हुआ, if I should ever come back, कि क्या मैं कभी वापस लौट के आ पाऊँगा इस रास्ते से, जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना। हर इंसान को एक बार के लिए डाउट होता है। जब आप कभी किसी से अलग रास्ता चुनते हैं तो मन में थोड़ा सा डाउट ज़रूर आता है कि क्या मैंने जो रास्ता चुना है बाद में मुझ पे लोग हंसेंगे तो नहीं, बाद में मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। तो यही डाउट उसके अंदर भी आया। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ कि कहीं मैं वापस नहीं आ पाया तो, ठीक है, ये बात लेके उसे संदेह हुआ। ओके, दिस इज़ द थर्ड स्टैंजा। नाउ द लास्ट स्टैंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय आफ्टर so many days in future. This stanza is talking about the future. Okay, I shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence, he said. Okay, he said that he shall be telling this incident with a shy, with a regret. वो कहता है कि मैं इस घटना को भविष्य में ना एक पछतावे के साथ बता रहा हूँगा। somewhere ages and ages hence, कहीं पे जो है कई वर्षों के बाद मैं इस घटना को पछतावे के साथ, ठीक है, पछतावे के साथ इन द सेंस कि कुछ बुरा होगा तो पछतावे के साथ और कुछ अच्छा हो गया तो खुशी के साथ जो है मैं बता रहा हूँगा कई वर्षों के बाद, ठीक है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, यह बता रहा हूँगा मैं कि दो रोड जो हैं एक जंगल से जो है अलग हुए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने हिम्मत करके वो सड़क चुनी थी जिस पे बहुत कम लोगों ने चलने का साहस किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे साथ जो भी अच्छा होगा फ्यूचर में और बुरा होगा मैं कहूँगा, और इसी वजह से आज ये जो अंतर है वो इसी वजह से है क्योंकि मैंने अलग रास्ता चुना था, ठीक है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इस चीज़ ने जो है सारा अंतर बना दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं फ्यूचर में क्लेम करूँगा। सो दिस इज़ व्हाट द पोएट्री ऑफ Robert Frost, and the name of the poetry, the title of the poetry is The Road Not Taken. Hope you guys like this poetry. This is really a very interesting and inspiring poetry. We must talk about it. You accomplish the question and answer of this poetry, and we shall talk about the poetry, the queries regarding poetry and rest of the thing on Saturday morning. Okay, so this is what about this poetry. Hope you guys like this. Thank you everyone. Enjoy yourself.